Okay, so after a long time we are meeting today. So can you hear me properly? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. So the Paterno-Bucci reaction here, I am presenting the couple of slides where the reaction is basically with the carbonyl containing compounds and the alkenes or olefins. Okay, so the substrates for the Paterno-Bucci reaction is the first substrate is ketones or aldehyde, and another substrate will be the alkenes or alkynes. So double bond or triple bond, they can be the substrates for the Paterno-Bucci reaction. And after inducing after irradiation with HNU, you will get the formation of four membered ring. And what is the beauty of this four membered ring? The four membered ring contains one of the hetero atom, that is the oxygen, and this ring is specifically known as oxatine. The ring is called as oxatine. Now, what are the characteristics of this particular reaction? So the Paterno-Bucci reaction is nothing but the 2 plus 2 addition reaction. 2 plus 2, either intermolecular cycloaddition reaction, or you can consider it as a 2 plus 2 intramolecular cycloaddition reaction. Now you have learned this reaction in pericyclic reactions, where you have seen that the addition of two alkenes, right? So it is something different. So instead of using another molecule as a alkene, here we are using the aldehyde. So in simple pericyclic reaction, we are using two molecules of alkenes. Either they are different, they can be different, or they can be same. So you will get the either dimerization or either the cyclo alkanes, etc., etc., etc. But here one of the reactants is replaced by the aldehydes or ketones, and you are getting oxatine. So whenever such type of reaction appears in the examination, please try to understand the reaction is nothing but the Paterno-Bucci reaction. So what are the important points to be noted over here? The first point is the substrates are fixed. The very first thing you have to remember, the substrates are fixed. It means the first substrate is either aldehyde or ketone, means one of the substrates is carbonyl containing compound and the other substrate is alkenes or olefins. It can be alkene, it can be alkane. So this substrate may contain double bond or it may contain triple bond. So but the formation of four membered ring contains a very peculiar atom, that is a oxygen, and this ring is called as oxatine. This ring is called as oxatine. Now let us see the other important characteristics of this reaction is. Now we know that the reaction is always proceeds via irradiation. It absorbs energy, electrons get excited to the higher energy level. So it may be initiated either by pi-pi transition or by n-pi transition. So the important point is, in this reaction, the reaction is initiated via n-pi transition, because we know that this particular oxygen is having non-bonding electrons, though alkenes are also having pi electrons, but uh, the n-pi transition is always having less energy, higher energy than the pi-pi transition, as we always know about the Jablonski diagram. So n-pi transition is always allowed over here. So this n-pi transition initiated and the grounds. So the very important thing is, uh,
if we are till in Norrish type 1 and Norrish type 2, we have seen only one substrate where it gets excited to singlet state, it gets excited to triplet state, etc., etc., and you are getting some homolysis and breaking of the bond. But here something different we have to see over here, that we are using two substrates. So the very first question is, can both substrates get excited, or if which one which molecule gets excited first? So the answer for these two questions here, we can see that the first answer is, the first question is, can both substrates get excited? The answer is no. Only one substrate gets excited. So which substrates gets excited? The carbonyl containing compound gets excited. It's absorb energy. As we know that n-pi transition will take place because the lone pair of electrons, uh, they are at the higher energy level. So n-pi transition takes place and this molecule absorb energy, and the reaction is initiated via absorption of energy by ketones or carbonyl containing compounds. So the excited state of the carbonyl containing compound or the excited state of the aldehydes or ketones and the ground state of the alkene. So they both participated in the reaction and you will get the cycloaddition reaction. So this is the first point to be remembered over here. So in the Paterno-Bucci reaction, T1 of the alkene is comparable or higher than the C double bond O. Now, this is the very important point to be remembered, or this is the very important point to be discussed, that the triplet state of the alkene is higher than C double bond O. Now, if this alkene has lower energy, so what you know that one of the most important characteristic of the aldehydes or ketones, they are also known as a photosensitizers. Means they also sensitize the other molecule, they donate its energy to the another molecule, and it will come back to the ground state. It means that in this case, if the energy of alkene is less, if the triplet state of the triplet state energy of the alkene is less than the triplet state of the carbonyl containing compound, so what will happen, that this molecule, this is suppose this is a benzophenone. So this benzophenone acts as a photosensitizer, and it simply donates its energy to the alkenes, and it will come back to the ground state. So it gets excited state, it acquires some amount of energy, it will donate its energy to the alkenes, and it will come back to the ground state. Now in this particular state, what is going to happen, now your alkene gets excited over here, and once the alkenes gets excited over here, then you will not get the oxetine, you will get simple cycloalkanes, right? But now in that case, that reaction is not Paterno-Bucci reaction. The Paterno-Bucci reaction, only we can refer it as it forms a oxetine. So please remember that in Paterno-Bucci reaction, the energy of transition T1 of the benzophenone is more than the triplet is the less than the T1 of the alkene. So this is the first condition we have to follow. जैसे मैंने बताया कि अगर इसकी एनर्जी कम रहेगी और इसकी ज्यादा रहेगी, तो ये अपनी एनर्जी इसको डोनेट कर देगा,
और डोनेट करने के बाद ये ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा. If it come back to the ground state, then there will be some other reactions will be followed. For example, there will be dimerization, there will be a cycloaddition reaction, but in that case you will get the formation of cycloalkanes. So there is the formation of oxazine is ruled out, right? So in that case you will not get the oxazine. The reason is that the benzophenone is not going to participate in the reaction. So in that case we cannot say that the reaction is Paterno-Bucci reaction. We can say that the reaction is dimerization. Okay, so in that case the mechanism will be totally different if we use so the selectivity of proper aldehydes and ketones is very important in the Paterno-Bucci reaction. So which moieties we have to select? The first condition we have to select such a carbonyl containing compound which possess less energy than the alkenes. You got it? Yes. यहां तक समझ में आया सबको? Yes, ma'am. तो Paterno-Bucci रिएक्शन करने के लिए सिलेक्टिविटी ऑफ दी सबस्ट्रेट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हमने गलत सबस्ट्रेट्स अगर सिलेक्ट किए हैं तो प्रोबेबली वी आर नॉट एबल टू कंडक्ट दी Paterno-Bucci रिएक्शन. तो सबसे पहली कंडीशन हमें ये देखनी है कि हमें अल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो है वो हमें ऐसे सिलेक्ट करने हैं जिसकी T1 एनर्जी यानी ट्रिपलेट एनर्जी जो है वो एल्कीन से कम हो. ठीक है. सो इट मीन्स दैट एल्कीन्स की एनर्जी T1 एनर्जी ये ज्यादा होनी चाहिए कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया. अगर ये ज्यादा एनर्जी अपने पास रहता है, so benzophenone or such a carbonyl containing compounds, they always act as a photosensitizer. यानी सेंसिटाइजर मीन्स वो सेंसिटाइज करते हैं, दूसरों को एनर्जी अपनी दे देते हैं और अपने आप को रिलीज कर लेते हैं, अपने आप को ग्राउंड स्टेट पे लाते हैं. सो इन दैट पर्टिकुलर केस दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन. अगर पहली कंडीशन हमारी क्या है Paterno-Bucci की कि हमारे पास कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड भी हमें चाहिए और हमें एल्केन्स भी चाहिए. अगर हमारे इसमें कार्बोनिल अल्डिहाइड्स और कीटोन्स ही पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सो देयर इज नो क्वेश्चन टू डिस्कस द Paterno-Bucci रिएक्शन. सो दैट इज व्हाई the selectivity of the proper substrates is always focused over here, and it should be just and proper, that we have to select proper substrates which are having proper energy levels. Okay, so जैसे मैंने बताया कि जैसे Paterno-Bucci अगर रिएक्शन नहीं, ऑक्सीजन अगर फॉर्म नहीं होता है तो क्या फॉर्म होगा? तो एक्साइटेड olefins will डाइमराइजेस, ये एक पॉसिबिलिटी है. दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि उसमें साइक्लो एल्केन्स फॉर्मेशन हो सकता है. सो टू गेट Paterno-Bucci रिएक्शन वी मस्ट हैव अ बेंजोफिनोन which is having T1 less than the T1 of the olefins. So this is the very important condition to be remembered over here. Now let us have the यहाँ तक समझ में आया the characteristics of the Paterno-Bucci reaction? Yes, ma'am. Yes. So Yes. So this is a simple what we can say. Then I will explain it on the whiteboard. But let us see this presentation over here. So this is a simple Paterno-Bucci reaction where you can see that the formation of, इसको सिर्फ अच्छे से देख लो, then I will explain on the whiteboard. Okay. सिंपल एक साइक्लाइजेशन यहाँ पे हमें दिखाई देता है. सो हियर अगेन द ISC इज वेरी रिमार्केबल कैरेक्टरिस्टिक ओवर हियर, S1 to T1, क्योंकि सीधा T1 पे नहीं जाएगा, ये हमेशा आपको पता है कि ये S1 पे जाता है और बाद में ये T1 पे जाता है. सो ISC इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. नाउ प्लीज रिमेंबर दैट हियर
the representation of the carbonyl group and यहाँ पर मैंने अभी आपको रेडिकल फॉर्म में इसको नहीं, तो सबसे पहली बात आपको ये करनी है कि आपको दोनों भी सबस्ट्रेट को पहले रेडिकल फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है while showing the mechanism. Okay, so let यहाँ पर मैंने एक ही चीज को और डॉट में किया हुआ है, so I'll show it in terms of the spins, right? So आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो स्पिन अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और सेम स्पिन के अगर होते हैं तो वो रिपेल करते हैं. दैट इज द इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया ओवर हियर टू बी रिमेम्बर्ड. सो ये सारी चीजें बेसिक केमिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करती है. सो कैन आई स्विच ओवर टू द व्हाइट बोर्ड? आपने इसको देख लिया मैकेनिज्म को? ओके, सो नाउ आई एक्सप्लेन ऑन द व्हाइट बोर्ड, राइट? Now can you see it? Can you see the whiteboard? Yes, ma'am. No, ma'am. नहीं? No, ma'am. Okay, चलो. So अभी मैं व्हाइट बोर्ड पे स्विच ओवर करती हूँ. Now can you see the whiteboard? Yes, ma'am. Yes, ma'am. It's visible. Okay. तो ये अभी ये हमें डिस्कस करने हैं अभी, ठीक है? ये हम बाद में डिस्कस करेंगे. नॉरिश टाइप 2 के जो मैंने आपको कुछ दिए थे, आपके सबमिशंस भी देखे मैंने अभी. नाउ हियर वी कैन सी अ सर्टेन mechanism over here. Okay, तो सबसे पहले I can write on my whiteboard that okay. So the reaction is Paterno-Bucci reaction. ठीक है? तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने क्या क्या देखे हैं? द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज 2 + 2. It is a Cycloaddition. it is a 2 + 2 cycloaddition reaction. So this cycloaddition may be intermolecular, means दो मॉलिक्यूल के बीच में है, intermolecular, or it can be a intramolecular, right? So these two possibilities we can see over here in the Paterno-Bucci reaction. Now अब आपने पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में क्या देखा है कि there are two alkenes, ठीक है? You will get the formation of, so this is a पेरीसाइक्लिक रिएक्शन. ये हमने आपने देखा होगा, है ना? आपका हुआ होगा ये. In Paterno-Bucci Yes. reaction the substrate is either ketone, it can be a ketone, or aldehyde, and another substrate, of course, it can be a alkene or alkynes. So it can be a alkene or alkyne, ठीक है? So it can be a alkene or alkynes or alkenes, ठीक है? इस और हमें रिएक्शन कंडीशन क्या चाहिए? HNU चाहिए. और हमें क्या यहाँ पे मिलना है? जो भी हमें मिलना है ये यहाँ पे ऑक्सैटीन हमें फॉर्म होते हुए दिखता है. सो दिस इज अ टिपिकल रिएक्शन विच इज कॉल्ड एज अ Paterno-Bucci रिएक्शन. इस टाइप का अगर हमें कोई रिएक्शन कंडीशन दिखता है तो हमें डेफिनेटली पता चलना चाहिए कि द रिएक्शन इज Paterno-Bucci रिएक्शन. नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म? नाउ लेट अस सी द मैकेनिज्म. हमने ये तो डिस्कस कर लिया है कि जो रिएक्शन जो है वो कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड के बीच में है और दूसरा सबस्ट्रेट जो है. और सबसे पहले हमने क्या और एक चीज हमने क्या डिस्कस की है
the energy of the energy of T1, of course I am talking about the T1 energy of the carbonyl containing compound should be less than T1 energy of the alkenes. ये सबसे इंपॉर्टेंट हमें पॉइंट नोट डाउन करना है, ठीक है। और एक चीज बिफोर डिस्कसिंग विद द मैकेनिज्म, और एक चीज हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है कि जो सिंपल मैकेनिज्म से हमें इस प्रकार का आपको पता चलता है कि, लेकिन जहां तक स्टीरियोकेमिस्ट्री का सवाल है, जहां तक स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर कंसर्न करते हैं, सो दिस द मैकेनिज्म विल चेंज। तो कैसे चेंज होता है? डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द कंपाउंड, नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एल्कीन, एल्कीन के ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट्स है, अब कितने प्रकार के सब्स्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं? दे कैन बी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स और दे कैन बी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, ठीक है। For example, here I have the simple unsubstituted alkene. Here I have the electron donating group, and here I have the electron withdrawing group. अब सिंपल केमिस्ट्री की बात हम करते हैं, थोड़ा सा फोटोकेमिस्ट्री से हट जाते हैं और रिएक्शन मैकेनिज्म की हम बात करते हैं, सिंपल केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं। सो व्हाट इज द रोल ऑफ दिस डबल बॉन्डेड moieties, whether they are nucleophiles और इलेक्ट्रोफाइल्स? इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ये सबस्ट्रेट की प्रॉपर्टी क्या है? इसका क्या नेचर हो सकता है, वेदर इट इज न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल? हेलो, ये क्या हो सकता है? जहां कहीं डबल बॉन्ड है वो क्या है? Nucleophile. Yes, they are nucleophiles. Yes, so nucleophiles. Now if we see that suppose this is A, suppose this is B, and suppose this is C. Now my question is, which moiety reacts faster, A, B or C? Or predict the order, of, या तो आप ऑर्डर भी बता सकते हैं। Now we have to find that which moiety is very reactive. रिएक्ट फास्टर मतलब क्या है? आपको इसका जो नेचर ऑफ ए, बी एंड सी, यू हैव टू फाइंड आउट दी नेचर ऑफ ए, नेचर ऑफ बी एंड नेचर ऑफ सी. Okay, now as far as A is concerned, A is unsubstituted, and no doubt it is a very good nucleophile. Now other point is, let us focus on B. Now what is the structure of, for example, I am taking this as a CH3 and CH3. So CH3 are electron donating groups. So already this moiety is electron rich, means extremely good nucleophile. ठीक है, and additionally we are having 2 electron donating groups, so it becomes more and more electron rich because of the electron donating tendency of the CH3,
right? Now, so the nucleophilicity will be increased over here. Nucleophilicity will be enhanced. Okay, now focus on the C. C, for example, electron withdrawing. So I am using two cyano groups. So electron withdrawing group. So what is happening? So the electron density will be shifted over here. Okay, so this center becomes electron deficient as compared to this molecule or this molecule. So no doubt it is a good electron nucleophile, but nucleophilicity will be decreased. ठीक है, अब A हमारे पास है जो गुड न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल एंड दिस इज extremely good and this is a little bit the nucleophilicity has been decreased. अब देखो कि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो है, अब ये तीन लोग बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, एक जो है इट इज अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल, ए है अनसब्स्टिट्यूटेड है, रेडी टू रिएक्ट विद द इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा है इलेक्ट्रॉन रिच है बट एक्सट्रीमली गुड न्यूक्लियोफाइल है देन ए, और तीसरा जो है बैड कंपैरेटिवली लेस न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से कम हो गई है. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ऐड करने से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें चाहिए वो कम हो गई है. ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये किसके पास पहले जाएगा? फिर ये तीनों बैठे हुए हैं अपनी अपनी कंडीशन लेके. सो कैन यू डिस्कस, कैन यू इमेजिन, सो वेयर इट विल गो फर्स्ट और विच आपको पता है कि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव होती है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं मूव होता है, तो कौन सा न्यूक्लियोफाइल फास्ट मूव होगा कंपैरेटिवली? Yes. Hello. Can you hear me? Yes, ma'am. हाँ, so कौन सा जो है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल, हाँ, कौन सा न्यूक्लियोफाइल फास्ट मूव होगा? जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बी वाला. हाँ, बी. B. B will move fast because it has more electron density, so it is the nucleophilicity has been enhanced due to the electron donating groups. ठीक है, तो इतना तो पता चल गया कि B is having B reacts very fast than the other two. दूसरे नंबर पे कौन आएगा? A आएगा. ठीक है, तीसरे नंबर पे C आएगा. C क्यों आएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी जो ओरिजिनल न्यूक्लियोफिलिसिटी है अनसब्स्टिट्यूटेड की, उससे भी कम गई है. अब ये न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हो रही है, ये फास्टर रिएक्ट हो रहा है, इसका कनेक्शन किस चीज से है? इसका कनेक्शन है होमो एंड ल्यूमो. इसका कनेक्शन है होमो एंड ल्यूमो. वो हम अभी देखते हैं कि why they are very reactive. Okay, so if we see that again I have these so I can draw, this is a unsubstituted alkene, so HOMO, so this is a simple HOMO of this is a HOMO of unsubstituted. अगर मैं HOMO और LUMO की भाषा में बात करूं तो मुझे यहाँ पर दो चीजें बताना पड़ेगा कि what is the status of HOMO and LUL, why they are more reactive and why they are not less reactive. तो इसका कारण ये है, so this is a HOMO and LUMO of the unsubstituted. Now if I say that this is A, this is A, this is B, and this is C. If I say that B is more reactive than A, it means that the HOMO of the
अब देखो मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर किया है, सो हाइयर HOMO, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से इसका जो HOMO है वो हाइयर लेवल पे गया है, इट हैज हाइयर एनर्जी than the HA. Now what about, now this is C, and what about the electron withdrawing group? It has lower HOMO, so this is a lower HOMO and LUMO. तो हमें सिर्फ बात करनी है HOMO की, जिसका HOMO हाइयर है. जैसे हमें पता है कि जब हम N ट्रांजिशन की बात करते हैं तो इसका HOMO जो है हाइयर होता है, इसलिए ये ट्रांजिशन हमें सबसे पहले मिलता है. सेकंड ट्रांजिशन हमें ये वाला मिलता है जो नेक्स्ट लेवल पे होता है. सो सिमिलरली वी कैन ऑब्जर्व ओवर हियर द HOMO ऑफ अनसब्स्टिट्यूटेड, इसका जो एनर्जी लेवल है, ये देखो अभी मैंने थोड़ा सा इसको, देखो इसमें मैंने थोड़ा सा इसको एलिवेट करके दिखाया हुआ है, और इसमें इसकी जो एनर्जी है, देखो मैंने ये वाली एनर्जी है, ये एक स्टेप मैंने इसको लोअर दिखाई है. सो दिस इज अ HOMO of unsubstituted, this is HOMO of the electron donating one, and this is the HOMO of, so this is how actually ये criteria form होता है. इसीलिए the B is more reactive than the A and than the C, and C becomes less reactive than the B and A. ये समझ में है आपको? क्योंकि इसके होमो में जो परिवर्तन आता है या ट्रांजिशन आता है, उसकी वजह से उसकी रिएक्टिविटी जो है या तो वो डीएक्टिवेट होता है या तो वो मोर रिएक्टिव बन जाता है, बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ द HOMO. जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग जाते हैं, इसकी HOMO की एनर्जी है वो बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ द मोर इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. और जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है सेंटर की, तो HOMO नेचुरली विल गो डाउन टू द लोअर एनर्जी, तो मोर स्टेबल बन जाता है ये. तो लोअर एनर्जी मीन्स मोर स्टेबल, हायर एनर्जी मीन्स हायर मोर रिएक्टिव. तो ये क्राइटेरिया अभी हमें पटर्नो-बुच्ची में डिस्कस करना है. राइट नाउ हियर ये कंसेप्ट समझ में आया सबको, देन आई कैन गो टू द, क्योंकि इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री आनी है, इसलिए मैंने मैकेनिज्म अभी मैंने शुरू नहीं किया है. राइट. सो these points are very very important over here. Now one more point has been discussed over here, that for example very peculiar example, very important example, मैं हमेशा आपको कुछ अलग ही एग्जाम्पल्स बताती हूँ जिसकी वजह से आपको एक अलग एस्पेक्ट मिल जाता है. सो द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ओवर हियर दैट इट इज, अभी तक हमने क्या देखा है कि दिस इज अ सिंपल, दिस इज अ कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड. ठीक है. दिस इज एल्कीन. अगर हमने HNu उसको किया है तो जनरली मैकेनिज्म ऐसे दिखाते हैं कि इसका रेडिकल इसके साथ मैच होता है, इसका रेडिकल ये वाले कार्बन के साथ मैच होता है, and you will get the formation of 4-membered ring. Right. So this is a nothing but oxetane. Now here we know that, what is the meaning of that? तो इसको मैं ऐसा भी रिप्रेजेंट करती हूँ. सो दिस इज सपोज टू बी अनसब्स्टिट्यूटेड, जिसमें हमें हाइड्रोजन की वजह से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि हाइड्रोजन ये जो है या तो सिस में जा रहा है या ट्रांस में जा रहा है. ओके. नाउ अदर peculiar example I can, so this is for the unsubstituted, you will get a
Very simple 4-membered cycloaddition ring. Now another example I can discuss over here that now let us see the substituted. Let us see the substituted. Okay. तो यहाँ पर जो है नेचुरली हम लोग वो ही बोलेंगे कि ये दोनों जो है दे कंबाइन विथ ईच अदर एंड यू विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ. अब यहाँ पर देखो ये क्या है, दिस इज अ सिस अल्कीन. दिस इज अ सिस अल्कीन. नाउ इन द प्रोडक्ट यू विल गेट ट्रांस अल्कीन. एक सेकंड आनंदी, माझा क्लास सुरू आहे, ते बडबड करू नको तू. माझा क्लास सुरू आहे. बाहेर बाहेर बोल. मी इथे अभ्यास शिकवते. बाहेर बोल. So here you will get the formation of trans is the major product. इसका मैकेनिज्म हम जब देखेंगे तब हमें पता चलेगा. So cis will give you trans as a major product. Now दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं. इसका मैकेनिज्म में डिटेल में अभी पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी कंसेप्ट सिर्फ सुन लो, ठीक है. नाउ दिस इज अ ट्रांस अल्कीन. दिस इज अ ट्रांस अल्कीन. अब ट्रांस अल्कीन हम अगर सबस्ट्रेट लेते हैं, सो व्हाट वी आर गेटिंग ओवर हियर, ऑफ कोर्स यहाँ पे फिनेल है, बेंजोफिनोन हम यूज कर रहे हैं. सो हियर वी आर गेटिंग both CH3, means we are getting cis as a major product. We are getting cis as a major product. तीसरा एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, चौथा, जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हमारे पास है और इसमें जो है मेजर प्रोडक्ट जो रहेगा आपका सिस रहेगा. अब ये कैसे फॉर्म होता है, जैसे मैंने बताया कि डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स. डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट. अब देखो यहाँ पर ये दोनों में तो डिस्कशन होगा ही, लेकिन साथ में नाउ यू कैन सी दैट दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है सिस होता है, वो आपको ट्रांस देता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो आपको सिस देता है. ठीक है. यहाँ पे सिस का जो प्रोडक्ट है वो ट्रांस बन जाता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का सिस सबस्ट्रेट यूज करने से सिस ही मिलता है. तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको, कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखनी है जब इसका मैकेनिज्म मैं डिस्कस करूंगी. इतना समझ में आया? सो दीज आर द वेरी पिक्यूलियर एग्जांपल्स दैट वी मस्ट रिमेंबर. ओके. अब जैसे मैंने बात की है मैकेनिज्म की, सो लेट अस स्टार्ट विद द मैकेनिज्म. अब मैकेनिज्म की बात करते हैं तो हम okay, so mechanism if we start, तो जैसे मैंने बताया जब हम मैकेनिज्म की बात करेंगे ना, तो हम मैकेनिज्म की बात जब करते हैं तो हम इसको रेडिकल फॉर्म में लाएंगे. ठीक है. एक मिनट. ओके. सो दिस इज अ सिंपल. ठीक है. इसको मैं रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करती हूँ. रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत आसानी से आपको इसका क्या मतलब है. फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग मीन्स देयर आर टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अपोजिट स्पिन कैन कंबाइन एंड यू विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड. ठीक है. तो मैं एक सबस्ट्रेट को कुछ इस प्रकार से लिखती हूँ, जो मेरा इस प्रकार से
So see, so I am writing over here, that is, this is with, so one electron with the one electron with, so they are at the opposite spins. Okay, so one electron with the upward direction and another electron with the, so this is the radical form of the carbonyl containing compound. So I am writing another, so we are considering the unsubstituted alkene. So here I am writing the alkene as again in a, so this is, they are all, of course they are in a ground state. दोनों को भी मैंने ग्राउंड स्टेट में लिखा है क्योंकि ये अभी, so they are in the ground state. Okay, they are in the ground state. जैसे मैं irradiate करती हूं by radiation, तो सबसे पहले कंडीशन आपको क्या देखनी है, यू हैव टू irradiate only carbonyl containing compound, right? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि ओनली बेंजोफिनोन इज पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन एंड नॉट द एल्कीन्स. So alkene will remain in the ground state and the carbonyl containing compound will remain at the will absorb the energy and it undergo excitation. As we know that H nu अगर होता है S1. अब S1 की स्थिति में कैसे लिखूंगी, देखो S1 को मुझे कैसे लिखना है, याद करो S1 कैसे लिखते हैं हम लोग. अरे बात करो नहीं तो मैं बंद कर दूंगी. आई नीड सम इंटरेक्शन. ओके, how I should write the direction of the spin. Yes, opposite spin है ना, अपोजिट स्पिन में ही रहता है द सिंगलेट स्टेट, है ना. सिंगलेट स्टेट जो है वो अपोजिट स्पिन में ही रहता है, यानी देयर इज अ रिटेंशन ऑफ, ठीक है, देयर इज अ रिटेंशन ऑफ स्पिन, यानी जैसे वो स्पिन ग्राउंड स्टेट में था वैसे के वैसे स्पिन उसकी सिंगलेट स्टेट में होती है. सो दैट इज कॉल्ड एज अ रिटेंशन ऑफ द स्पिन, ठीक है. और फिर इसको हम क्या करेंगे, आपको पता है कि ये हमेशा ट्रिपलेट स्टेट में जाता है, तो आईएससी होता है इसमें, ठीक है. सो देयर इज अ आईएससी. ओके, नाउ ट्रिपलेट स्टेट में कौन से इंपॉर्टेंट चीज हमें करनी होती है, बताओ. यस, ट्रिपलेट स्टेट में जाना, आईएससी में जाना, इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहली चीज क्या होती है यहाँ पे, देयर इज अ स्पिन इन्वर्जन. भूल गए क्या सब लोग, हेलो हेलो, yes ma'am भूल गए. नहीं सो देयर विल बी अ स्पिन इन्वर्जन, ठीक है, यानी जो यहाँ पे उल्टा था वो यहाँ पे सीधा हो गया आईएससी इंटर सिस्टम कन्वर्शन में, और एनर्जी जो है इसने अपनी थोड़ी सी रिलीज की हुई है, ठीक है. सो हियर ये ट्रिपलेट स्टेट और सिंगलेट स्टेट है, ये किससे कंसर्न है, दे आर कंसर्न नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ योर इलेक्ट्रॉन, राइट. सिंगलेट स्टेट में उसका जो डायरेक्शन है वो जैसे के वैसे रहता है एज ऑन इन द ग्राउंड स्टेट. ट्रिपलेट स्टेट में इट हैज चेंज इट्स स्पिन, it will change its direction, that is called as a spin inversion. So triplet state में spin inversion होता है और उसकी वजह से प्लस 1/2 और प्लस 1/2 होता है, उसकी वजह से थोड़ा रिपल्शन होता है. एंड दी व्हाट वी कैन से द ड्यूरेबिलिटी, और इसका जो टाइमिंग है ये बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सिंगलेट, एंड दैट इज व्हाई द ट्रिपलेट स्टेट इज मोर स्टेबल देन द सिंगलेट स्टेट. ये मैंने बहुत पहले लेक्चर में आपको बताया था. अब देखो हम लोग कंडीशन वही है कि एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, ये सिंगलेट में जाता है और ये ट्रिपलेट में जाता है. मतलब इसका जो स्पिन का जो क्राइटेरिया है ये कुछ इस प्रकार का है.
और हमारा अल्कीन जो है हम इसको ऐसे के ऐसे ही ले रहे हैं, ठीक है। इसको अभी हम ऐसे के ऐसे ही यहाँ पर ये ग्राउंड स्टेट में ही हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ये तो आपको पता है ना। इसको हम ग्राउंड स्टेट में ही इसको कंसीडर कर रहे हैं। सो दिस इज एट द एक्साइटेड स्टेट। अब ये जो है ये एक्साइटेड स्टेट में जो आपका कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड है ये कुछ इस प्रकार से ये करेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन का स्पिन इस प्रकार से करेगा। और ये जो अल्किन है ये तो ग्राउंड स्टेट ही हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, तो ये ऐसे कैसे रहेगा। अब इसका कॉम्बिनेशन जो है जो मैंने ऊपर यहाँ पे दिखाया, ये कुछ इस प्रकार से हम इसको कंबाइन करते हुए दिखाते हैं कि, है ना, ये ऐसे ये जो मैंने डॉटेड लाइंस जो निकाली है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि now let us see, now this has upward direction और it has upward direction, तो इसका इसके साथ आसानी से, क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन अपोजिट स्पिन्स है, तो ये इजीली दे कैन कंबाइन। समझ में आया? इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? केमिस्ट्री नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज सेम स्पिन है। तो ये जो सर्च करेगा ये अपोजिट स्पिन का सेंटर सर्च करेगा, तो अपोजिट स्पिन का सेंटर जो है ये ऐसे के ऐसा है। तो अभी मैं इसको कुछ इस प्रकार से लिखूंगी, दैट विल बी योर, देखो मैं इसको रेडिकल फॉर्म में ही लिखूंगी, और आप बेटर है आप भी मैकेनिज्म जब भी डिस्कस करते हो तो रेडिकल फॉर्म में ही आप उसको दिखाओ, ताकि आपका मैकेनिज्म। सो नाउ हियर बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया है, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ शोइंग दी इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ये ऐसे के ऐसे ही हो गया है, तो ये जो H है ये जो है एट द बैक ऑफ द है, और ये जो है ये है फ्रंट साइड में है ना। ये ऐसे के ऐसे ही मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और यहाँ पर जो एंड है यहाँ पर देखो ये भी ऐसे के ऐसे मैं लिख रही हूँ। अब इसके तौर पे मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देती हूँ ये वाले हाइड्रोजन को, ताकि आपको आसानी से मैं एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। तो मैं इसको कुछ इस प्रकार से करती हूँ, ठीक है। सो ये जो H है ये वाला H है ना, क्योंकि मुझे आपको स्टीरियो केमिस्ट्री दिखाने में दिलचस्पी है, इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। नाउ दिस इज अनदर, देखो ये एक स्टेज हो गई, ट्रांजिशन स्टेट होगी, ठीक है। ये एक इंटरमीडिएट बना और ये बना दूसरा इंटरमीडिएट। अभी भी ये दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुआ है, एक ही बॉन्ड फॉर्म हुआ है। और ये जो मॉइटी है ये अभी भी दो इलेक्ट्रॉन के साथ बड़ी स्टेबिलिटी के साथ बैठी हुई है। क्यों ऐसा दिख रहा है? क्योंकि ये देखो ये स्थिति, ये ट्रिपलेट वाली स्टेट यहाँ पर है, सो दे आर वेरी स्टेबल, they are repelling but they are very stable, diradicals are very stable, okay। now यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो there will be a rotation, there will be a rotation और there will be a retention। retention का क्या मतलब है? अब रिटेंशन की बात अगर करते हैं तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, क्योंकि अगर स्पिन रिटेंशन अगर होता है, स्पिन रिटेंशन अगर होता है तो क्या होगा? देयर इज वेरी लीस्ट पॉसिबिलिटी, ये दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि दोनों के स्पिन जो है वो इन द सेम डायरेक्शन है। तो हम इसकी पॉसिबिलिटी जो है ये हम निकाल देते हैं, ठीक है। ये जो पॉसिबिलिटी जो है वो हम उसको डिलीट कर देते हैं। So I am deleting this possibility that retention of spin will never end up with the formation of product. So another possibility is the inversion. इन्वर्जन मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये खुद सिर्फ अपना डायरेक्शन चेंज करेगा
और रोटेशन की बात करते हैं तो ये बॉन्ड जो है वो रोटेट करेगा। ये समझ में आया आपको? इन्वर्जन में क्या हो रहा है देखो, सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, आइदर इन्वर्जन और रोटेशन। तो हम देखते हैं, अभी इन्वर्जन की बात करते हैं। इन्वर्जन की अगर हम बात करेंगे तो हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है वो चेंज कर देंगे। तो जाहिर है इलेक्ट्रॉन का अगर हमने चेंज कर दिया है तो इलेक्ट्रॉन का अगर हमने चेंज कर दिया है तो बाकी के सब्स्टिट्यूएंट्स जो है वो वैसे के वैसे अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। ये वैसे के वैसे रहेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ने अपना डायरेक्शन बदला हुआ है। ठीक है। और रोटेशन की अगर बात करते हैं तो अगर हम रोटेशन की बात करते हैं तो ये ऐसे के ऐसे रहेगा, ये वाला, क्योंकि इसके बीच में रोटेशन नहीं है। रोटेशन किसके बीच में है? इनके बीच में है ना, जो मैंने यहाँ पे बताया। तो रोटेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये बॉन्ड जो है ये रोटेट होगा। तो बॉन्ड रोटेट अगर होता है तो ये जो है ये वाला ऊपर जाएगा और ये वाला नीचे आएगा। तो ये वाला जो है जिसको मैंने मार्क किया हुआ है और ये वाला जो है नीचे का, ये ऊपर आ जाएगा। देखो ये पहले ऊपर था, ये पहले ऊपर था, मैंने उसको रोटेट किया तो ये नीचे आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि मैडम नीचे आने से क्या हो गया है, इसका भी इलेक्ट्रॉन जो है ये उल्टा हो गया है। ठीक है ना। अब दोनों के प्रोडक्ट देखो कैसे बनेंगे। इन्वर्जन के बाद जो बनता है आपका प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट जो बनेगा, जो H है वैसे के वैसे रहेगा। ठीक है ना। ये तो इसको हम ऐसे के ऐसे ही इसको नीचे ला सकते हैं। दूसरे रोटेशन की बात करते हैं तो देखो कैसे होगा यहाँ पे। जब तक स्पिन अपने फॉर्म में नहीं आएंगे तब तक बॉन्ड फॉर्मेशन विल नॉट पॉसिबल। तो आपने देखा होगा कि ये जो है ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पे नीचे आ गया है। अब देखो ये अनसब्स्टिट्यूटेड होने से आपको हाइड्रोजन का बहुत ज्यादा पता नहीं चलता है। ठीक है। अनलेस एंड अनटिल इफ इट इज लेबल्ड, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। अब यहाँ पे मैंने इसको लेबल कर दिया है, इसके आपको पता चला है कि ये वाला हाइड्रोजन है, ये ऊपर था, ये रोटेशन के बाद नीचे चला गया और इन्वर्जन में ये अपने ही पोजीशन पे रहा है। तो दिस इज एक्चुअली मैकेनिज्म where the Paterno-Bucci reaction takes place. अब ये बात रही है unsubstituted अल्कीन्स की। अब बात करते हैं, इतना समझ में आ गया सबको? हाँ मैम। Yes. Yes. इसमें ये है कि दिखने में ये दोनों भी सेम है, लेकिन अगर इसकी जगह मैं डी लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसकी जगह मैं डी लेती हूँ तो इट इज डिफरेंट। समझ आया? डी मतलब ड्यूटरेटेड। इतना समझ में आया? हेलो? Yes. Yes, ma'am. हाँ, तो इसको मैं अगर लेबल करती हूँ और H की जगह में ड्यूटरेटेड लेती हूँ तो आपको पता चलता है कि ये बोथ आर गिविंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स, बोथ आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है। रिटेंशन, एक तो इन्वर्जन, रिटेंशन की वजह से रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन इन्वर्जन अगर होता है तो ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ अपने आप को नीचे कर लेता है और रोटेशन में ये कंप्लीट बॉन्ड ही जो है वो कंप्लीट जो ग्रुप है वो ही अपना चेंज हो जाता है। इसकी वजह से जो यहाँ का पोजीशन है डी का और एच का वो भी चेंज हो जाता है एंड इन दैट वे देयर विल बी अ इस प्रकार से रोटेशन की वजह से भी इन्वर्शन हो जाता है।
राइट. सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, इन्वर्जन की एक पॉसिबिलिटी है और एक रोटेशन की है. इन्वर्जन से एक प्रोडक्ट मिलता है, रोटेशन से दूसरा प्रोडक्ट मिलता है. ये बात आपको ध्यान में रखनी है. अब ये हो गया अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स का. ठीक है, मैकेनिज्म अनसब्स्टिट्यूटेड मैकेनिज्म का, अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स का मैकेनिज्म कुछ इस प्रकार से आपने देखा. अब सब्स्टिट्यूटेड का देखते हैं, है ना. ये दूसरा देखते हैं कि इसको हमने कैसे फॉर्म किया. बराबर. अभी लेट अस सी द मैकेनिज्म ऑफ सेकंड मॉलिक्यूल. राइट. सो व्हाट इज द सेकंड रिएक्शन. इसको मैं अगर ऐसे लिखती हूँ, ठीक है. अब सब्स्टिट्यूटेड है विथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो मैंने बताया क्या मिलने वाला है मुझे. यहाँ पे बताओ कौन सा प्रोडक्ट मिलने वाला है. ट्रांस मिलने वाला है. तो मैकेनिज्म देखते हैं अभी ट्रांस कैसे मिलता है. नो मेजर, मैं क्या बोल रही हूँ, मेजर. जबकि दोनों भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, लेकिन कौन सा मेजर है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है. CH3, ठीक है. ये भी मिलता है और ये भी मिलता है, ये आप ध्यान में रखना. ठीक है. सो दिस इज ट्रांस एंड दिस इज सिस. ये दोनों भी मिलते हैं, बट दिस इज अ मेजर वन. अब ये कैसे मेजर वन है, इसको हम देखते हैं मैकेनिज्म के थ्रू. ठीक है. कोणाला पाहिजे. 10 रुपये फक्त. हा बोला. हो वाढून गेलं. So let us see the mechanism. Now in the mechanism, मैकेनिज्म में रेडिकल फॉर्म में करते पहले. ठीक है. सो रेडिकल फॉर्म में मैं इसको डाल देती हूँ. राइट. रेडिकल फॉर्म में अभी हम इसको इंड्यूस करते हैं बाय H न्यू. काकूजी आवाज करू नका भांड्यांचा. ठीक है. सो S1 में अगर मैं लिखती हूँ तो इसकी क्या स्टेटस होगा. दोनों के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वैसे के वैसे रहेंगे. इसमें ISC बनेगा. ISC में क्या होता है, स्पिन इन्वर्ट होता है. ठीक है. इसको रेडिकल फॉर्म में अगर लाओगे तो बहुत आसानी से आप सीख पाओगे. सो दिस इज अ T1. ठीक है. अब T1 ऑफ द कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड एंड द ग्राउंड स्टेट ऑफ अल्कीन. ठीक है. एंड द ग्राउंड स्टेट ऑफ अल्कीन. अब ग्राउंड स्टेट ऑफ अल्कीन क्या है अपना, इसको भी मैं रेडिकल फॉर्म में अगर लिखूं तो ये ग्राउंड स्टेट का हमारा है एल्कीन. ठीक है. ये H है और ये H है. ये सिस है. राइट. ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये सिस के साथ है. अब देखो ये ऑक्सीजन जो है ये किसके साथ रिएक्ट करेगा. फॉर एग्जाम्पल अब ये कार्बन 1 है और ये 2 है, तो ये जो ऑक्सीजन है ये किसके साथ करेगा रिएक्ट, है ना. तो क्योंकि ये अपोजिट स्पिन है कर, इसीलिए अब आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि ये C1 के साथ करेगा C2 के साथ करेगा. जिसका स्पिन C1 C2 की बात नहीं है, जिसका स्पिन उसके साथ पेयर करेगा उसी के साथ वो रिएक्ट करेगा. समझे. तो अभी हम इसको
रेडिकल फॉर्म में ही तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से तो अब ये है, ये पेयर में दिखा रही हूँ, इसका क्या मतलब है, ये रेडिकल है, ठीक है। इसके ऊपर या तो इलेक्ट्रॉन लिखो या तो पेयर लिखो। तो इसका भी क्यों नहीं साइमल्टेनियस कॉम्बिनेशन इसका क्यों नहीं हो रहा भाई? इसलिए नहीं हो रहा है कि दोनों के जो स्पिन है वो सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। अब दो पॉसिबिलिटी मैंने पिछले बार बताई थी, कौन सी पॉसिबिलिटी है बताओ? एक तो है इन्वर्शन, स्पिन इन्वर्जन होगा, और दूसरा जो है रोटेशन होगा, ठीक है। स्पिन इन्वर्जन की वजह से जो है हमें क्या मिल रहा है? ठीक है, स्पिन इन्वर्जन से क्या हो रहा है, ओनली इसका जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है, बाकी जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो अपनी जगह पे है। सो देयर इज अ सिस प्रोडक्ट। एंड रोटेशन के बाद आपको क्या मिलता है, ये कंप्लीट जो है आपको रोटेशन में जो है, रोटेशन करने से ये जो है ये नीचे आ जाएगा और ये जो है ये ऊपर चला जाएगा। सो देखो इसकी जगह वैसे की वैसे बनी हुई है, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है। Right now here it is a trans, ठीक है। और मैंने क्या बताया था कि आपको हमेशा ये मेजर प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, एंड दिस इज अ माइनर प्रोडक्ट, दिस इज अ माइनर प्रोडक्ट। नाउ द स्पिन इन्वर्जन will take place. If spin inversion takes place, you will get the formation of cis, and if rotation takes place, you will get the formation of trans. तो कौन सा फिजिबल है? तो जाहिर है कि रोटेशन ऑफ द सी सिंगल बॉन्ड इज मोर फिजिबल, क्योंकि स्पिन इन्वर्जन तो ऐसे कैसे अपने आप होगा, है ना, उसके लिए तो कोई और ड्राइविंग फोर्स लगता है। और यहाँ पर जो ड्राइविंग फोर्स है कि ये जब फ्री एंड होता है ये हमेशा रोटेट होता है ना, ये हमेशा दूर जाता है। सो टू अवॉइड दी स्टेरिक हिंड्रेंस, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये अपने आप को रोटेट करता है। एंड if they are in the same direction, so naturally after rotation this will, they are representing over here in the opposite direction, and that is why trans product is the major one. दोनों भी फॉर्म होते हैं, ऐसे पब्लिश किया हुआ है, बट the major product is the ट्रांस प्रोडक्ट। तो मैंने हमेशा आपको बताया कि जो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा वो ही आपको लिखना है, ये मैकेनिज्म के तौर पे मैंने आपको समझाया है। इतना समझ में आया? Yes, ma'am. Okay. So by tomorrow morning 9 o'clock, will it possible? 9 to 10, 10 to 11? Yes, ma'am. हाँ, तो फिर बचे हुए जितने मैकेनिज्म, क्योंकि हर एक का मैकेनिज्म अलग है ना, ये जो मैंने अभी एक का बताया दूसरे का बताया, ठीक है,
इसका भी बताऊंगी और उसका भी बताऊंगी, ठीक है। तो ये चारों के मैकेनिज्म करने के बाद देन विल डिस्कस दी प्रॉब्लम्स ऑफ पटर्नोबुची रिएक्शन। एंड टुमारो अगर टाइम मिलता है तो आपने जो सॉल्व किए क्वेश्चंस वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। सो आई थिंक वी शुड स्टॉप ओवर हियर बिकॉज आई हैव टू गो टू कॉलेज फॉर सम इम्पोर्टेंट वर्क, ठीक है। तो यहीं रुक जाते हैं अभी हम, ओके ओके। Yes, ma'am. समझ में आया आपको ये सब? हाँ मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. So